गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ डिफेंस डे के बारे में, जो 6 सितंबर 1965 की वार के बाद कहलाता था। मैं पहले आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, यानी समराइज भी हम लोग करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। तो लेट्स बिगिन। This video I will tell you about the reasons of 6 September 1965 war. Why we call 6 September the Defense Day of Pakistan and how we celebrate it. After the independence of Pakistan and India, both the countries Pakistan and India claimed Indians occupied Kashmir had a majority of Muslims, and the people of Kashmir wanted to be a part of Pakistan. Unfortunately, Kashmir's authority at that time declared them the part of India. Thus, a dispute among the Kashmiris in India began. India wanted to suppress the Kashmiris by sending Indian troops in Kashmir. In 1965, Pakistani army decided to stand for the rights of Kashmiris. As a reaction to that, its army crossed the borders of Pakistan on 6 September without formal declaration of war. They mainly attacked the regions of Lahore, Sialkot, and the desert area of Sindh. Many people lost their lives from both countries, and a lot of weapons were used. India's attack on Lahore was not only held, but also beaten back by our troops, causing heavy losses to the attackers. Pakistan army officers and jawans were defending on the ground and were fully supported by Pakistan Air Force fighters who showed high morale and spirit in the air. Afterwards, the Indian aircraft hardly dared to attack Lahore for the days the war was in progress. Great Battle of Tanks in Sialkot sector, the largest tank battles in the गाइस मुझे आप लोग से एक चीज़ पूछनी थी। आप लोगों को पता है कि हमारे कितनी फोर्स हैं? हमारी 3 फोर्स हैं, एयर फोर्स, आर्मी फोर्स एंड नेवी फोर्स। तो ये 3 हमारी पाकिस्तान की फोर्स हैं। Second World War was a hard and vigorous struggle fought for many days and nights, resulting in heavy casualties on both sides. However, the main Indian attack was held at the woods. The large number of damaged and destroyed Indian tanks made the battlefield a blazed weather, telling visitors from all over the country the story of spirited fight of Pakistani troops.
the Indian Army Force. Celebrated each year in memory of martyred people. इंडियन आर्मी फोर्स एंड ऑल्सो पाकिस्तान आर्मी फोर्स। मतलब पाकिस्तान की भी एक वही होती है आर्मी फोर्स। Gave sacrifices of their life for the defense of the country in 1965 war. Special praise are performed to give tribute to our armed forces for all the martyrs of the war. National song and special documentaries about 6 September 1965 and martyred people of 6 September are displayed on TV. It is told in documentaries and TV shows how people gave sacrifices for the defense of the country. And what is the responsibility of young generation now? Everyone is allowed to watch such functions live by going to the specific places. These shows are displayed on national channels as well. Defense Day is a day to renew our pledge that we are a strong, proud nation, and that we will not be intimidated by any foreign nation, no matter how strong it is. Our military is a sample of all that and much more. This year, nation will also express solidarity with residents of India-occupied Kashmir, who have been under lockdown for the past several months. The Indian government has placed Kashmiri leaders under house arrest and imposed a strict curfew and communication blackout in the region. Pakistani condemned this lockdown, looking for the UN. तो लेट्स रिकैप इट। तो 6 सितंबर को वार शुरू हुई, 22 सितंबर को वार ख़त्म हो गई। वी डिफेंडेड लॉर्ड, हमने बहुत अच्छे से डिफेंड करा, हमारी तीनों फोर्स ने हमें हेल्प करा, हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिफेंडिंग करी, इसलिए ये डिफेंस डे है, इसलिए ये डिफेंस डे कहलाता है। और हमें हॉलीडे मिलती ताकि हम मतलब हॉलीडे मिले कि नहीं मिले, लेकिन हम ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हम बता सकें कि हम ब्रेव हैं, हम सेक्रीफाइस दे सकते हैं हमारी कंट्री के लिए। हम उन सब फौजियों को याद करते हैं जो जिन्होंने अपनी जानें सेक्रीफाइस कर दी। और पता है आपको यहाँ पे एक और पॉइंट मिसिंग है कि लाहौर के जो सिविलियंस थे ना, यानी जो लाहौर में रहते थे, वो लोग भी फाइट के लिए आ गए थे। यानी हम लोगों में इतना जज्बा है, फिर अब क्यों नहीं, अब हम लोग क्यों पैलेस्टाइन के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे? वी कैन डू इट। अभी भी हम वही लोग हैं, सिर्फ लोग बदलें, जनरेशन्स नहीं, सिर्फ लोग बदलें, नेशंस नहीं, सिर्फ लोग बदलें, जज्बा नहीं। हम अभी भी वही पाकिस्तानीज़ हैं जो पहले हमारे फ़ौजी थे, जो 1965 में थे, 2024 में भी वही हैं। हर साल हम 6 सितंबर बनाते हैं। हम नहीं भूलेंगे कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, हम नहीं भूलेंगे कोलकाता की लड़की का रेप। हम क्यों भूलें? हम एक नॉर्मल जनता नहीं है, हम एक नॉर्मल आवाम नहीं, लोग नहीं है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इत्तेहाद, यूनिटी। उस वक्त अगर पाकिस्तान भी के फ़ौजी भी यही सोचते तो आज हम लोग यहाँ पे ना होते, लेकिन उन्होंने इत्तेहाद किया, यूनिटी करी और क्या पाया? मिलजुल कर उन लोगों ने जंग जीती। हालांकि वो इंडियन फोर्स से बहुत कम थे और इंडियन ने ऐसे ही अटैक करा था तो उनके पास इतने वेपन्स भी नहीं थे, लेकिन हम जीते। हम क्यों भूलें? हम एक आवाम नहीं, हम यूनिटी करें। अगर हम हर एक वीडियो पे पोस्ट करें, सिर्फ 6 सितंबर याद नहीं करना चाहिए, हमें बाकी दिन भी ऐसे हैं। जब पैलेस्टाइन और इसराइल की वार शुरू हुई, जब ब्लैक डे बनता है हमारा, जिसमें स्कूल के बच्चे मारे गए इतने सारे, ये सब वही है। कोलकाता में रेप हुआ, ये सब क्यों भूलें हम क्यों नहीं वीडियोस डालते? थोड़ी सी वीडियो देखकर थोड़ा सा रो दो के आगे क्यों बढ़ा देते हैं? we should never forget this. we should never forget this. हम ये कभी ना भूलें। और we should upload videos, हम जितना कर सकते हैं करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि लोग बार बार ये याद करते रहें कि हमारी कंट्री में अभी भी जस्टिस नहीं है, हमारी कंट्री अभी भी इंडिपेंडेंस नहीं है। हमें
इन चीज़ों से आज़ादी चाहिए, हमें रेप से आज़ादी चाहिए, हमें जो एक गर्ल्स के लिए एक जस्टिस बनाने में पता है कि आउट ऑफ सब मतलब हम जो 6 सितंबर की बात कर रहे हैं उसमें नहीं है, लेकिन हमें ये सब भी ध्यान में रखना चाहिए। 6 सितंबर को फौजी थे, बाकी दिनों में हमारी अवाम है, तो हम उनके लिए आवाज़ ना उठाएं, हम हर किसी को याद करें, हर कोई एक अनमोल जान होती है। तो मैं बस इसको वो करती हूँ समराइज़। तो लड़ाई कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई तो मैंने आपको बता दिया। उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि हम कम थे, फोर्स नहीं थी। लड़ाई कश्मीर पे हुई थी और उस वक्त की अथॉरिटी ने मतलब वहाँ पर उस वक्त जो नेता प्रेसिडेंट ये सब थे, उन्होंने कहते कि कश्मीर उनका है, लेकिन उस जंग के बाद वो कश्मीर को थोड़े बहुत राइट्स मिल गए थे, लेकिन अभी भी कश्मीर पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है। और हम सिर्फ पैलेस्टाइन और इसराइल क्यों देखते हैं, बाकी भी ऐसे शहर हैं जो आज़ाद नहीं है। कश्मीर आज़ाद नहीं है, बाकी इतनी जगहों पे सोशल इक्विटी नहीं है, बाकी इतनी जगहों पे जस्टिस नहीं है। हमें उन सब को देखना चाहिए और हमें यंग जनरेशन को क्या करना चाहिए, हमें इन सब को रोकना है। हमें सिर्फ अपनी लड़कियों को टीचिंग नहीं देनी कि घर से बाहर नहीं जाओ, लड़कों को भी देनी है कि आपको देख के कोई लड़की हेजिटेट फील ना करे, कोई लड़की डिस्कम्फर्टेबल फील ना करे। और हम लड़कियों को भी समझाएं कि वो ट्राई करें कि मतलब शॉर्ट क्लोथ्स रात में ये सब ना करें, बट लड़कों को भी समझाएं। और सिर्फ ये इसकी बात नहीं, लड़कों लड़कियों को समझाएं, बाकी इन्वायरमेंटली हम कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, हैबिटाट्स डिफॉरेस्टेशन, हम इस सब को सला सकते हैं। यही हम यंग जनरेशन का काम है। 6 सितंबर को हम फौजियों को याद कर लेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। हम उनकी याद में उनकी तरफ से एक प्लांट उगाएं, या फिर उनकी तरफ से किसी गरीब को खाना दें, इससे क्या होगा, या किसी की हेल्प करें, इससे क्या होगा, पुअरनेस कम होगी और डिफॉरेस्टेशन कम होगी और हमारी कंट्री डेवलप होती जाएगी। चलें, बाय। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो माफ़, लेकिन आई वॉन्ट टू शेयर ऑल दिस टॉपिक्स इन वन थिंग। बाय।